بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایشیا کا پہلا جوڈیشل ٹاور ملتان میں بنے گا۔ کچہری میں 11 منزلہ جوڈیشل ٹاور کا میگا پروجیکٹ شروع کرنے کی نوید دے دی گئی۔ ملتان کچہری میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کا شاعرانہ خطاب، قتیل شفائی کے اشعار بھی تقریر کی زینت بنائے۔ میں مختلف منصوبوں کے سنگ بنیاد کے افتتاح کے موقع پر چیف جسٹس محمد قاسم خان نے خطاب کیا۔ انہوں نے بار کے ساتھ گزارے وقت کا خصوصی ذکر کیا۔ چیف جسٹس نے ضلع کچہری کی توسیع بارے کاوشوں کے حوالے سے تفصیلات بتائیں۔ اسی بار نے مجھے عزت دی اور میں اس بار کا جنرل سیکرٹری رہا۔ یہیں سے میں نے وکالت کی ابتدا کی، یہیں سے میں نے کچھ قانون کی منہ شگافیاں سیکھیں جو زندگی کے سفر میں میرے ہمیشہ کام آتی رہی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ضلع کچہری کی توسیع کسی ادارے کی ہار نہیں ہوئی، توسیع سے سب کی ضروریات پوری ہوں گی۔ ضلع کچہری کی 11 منزلہ عمارت مثالی ہوگی۔ عدالت سینکڑوں لوگوں کے بیٹھنے کا کھلا ماحول ہوگا۔ میں اکیلا کچھ نہیں تھا، میرے بردر ججز میری طاقت تھے، جو آپ کی آواز تھے، اور ہم نے ادارے کی بہتری کے لیے کچھ کام کرنے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے کہ آپ کا اور ہمارا دونوں کا کام ان پسے ہوئے لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے جو اپنے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر وکلا کے ذریعے عدالتوں میں اپنے ان حقوق کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ صدر ڈسٹرکٹ بار نے کہا کہ ہم چیف جسٹس کے مشکور ہیں جن کی کاوشوں سے وکلا کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نئے بلاک کا نام محمد قاسم خان بلاک رکھا جائے گا۔ کہ اس کمپلیکس کی جو سٹی جوڈیشل کمپلیکس بن رہا ہے اس پہ آپ کی کاوش ہے، اور ملتان بار کی یہ آپ سے درخواست ہے کہ ہم اس جوڈیشل کمپلیکس کا نام آپ کے نام کے ساتھ محمد قاسم خان کمپلیکس رکھیں۔ اس موقع پر چیف جسٹس کے ہمراہ جسٹس محمد امیر بٹی، جسٹس سید شہباز علی رضوی، جسٹس ساجد محمود سیٹھی، جسٹس طارق سلیم شیخ، رجسٹرار ملک مشتاق اوجلا، سیکرٹری لا بہادر علی خان، ناظم خان جاوید اقبال اوجلا سمیت دیگر وکلا نے شرکت کی۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ جنوبی پنجاب کے وکلا کے مسائل کے حل کے لیے آج تاریخی دن ہے۔ مظفر گڑھ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کا وکلا کے سالانہ عشائیے سے خطاب، کہا ترقیاتی منصوبوں کو تیزی سے پورا کیا جائے گا۔ مظفر گڑھ پہنچنے پر ڈی سی اور ڈی پی او نے ان کا استقبال کیا، نئے جوڈیشل کمپلیکس کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ ہاؤس مظفر گڑھ میں وکلا کی سالانہ عشائیے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم نے کہا ہے کہ کورونا کے باوجود پنجاب کی عدلیہ نے پچھلے سال کی نسبت 3.25 لاکھ زیادہ کیسز کے فیصلے کیے۔ عدلیہ اور وکلا کو انصاف کی فراہمی کے لیے تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ اس معاشرے کے وہ لوگ جو اپنے حقوق سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور آپ کے ذریعے وہ اپنا حق لینے کے لیے عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں۔ اب آپ کی اور ہماری یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ تیزی کے ساتھ ان لوگوں کو انصاف مہیا کیا جائے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انصاف کی فراہمی میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہ ہو۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے مظفر گڑھ جوڈیشل کمپلیکس کا سنگ بنیاد اور بار روم کی تزئین و آرائش کا افتتاح کیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کا کہنا تھا کہ کورونا کے باعث زیر التوا مزید کیسز کے فیصلے بھی جلد کر لیے جائیں گے۔ ان کی کاوشوں سے پنجاب حکومت نے صوبے بھر کی بار ایسوسی ایشنز کے لیے 25 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی۔ آج مظفر گڑھ میں ایک نئے جوڈیشل کمپلیکس کی بنیاد رکھ کر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس منصوبے کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے گا۔ میری کوشش کے ذریعے حکومت پنجاب نے تقریباً 25 کروڑ روپیہ پورے پنجاب کی بار ایسوسی ایشنز کو گرانٹ کے لیے
मंजूर कर लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि ख्वाहिश है कि जनूबी पंजाब के खित्ते से ज्यादा लोग अदलिया में आएं। तकरीब से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुजफ्फरगढ़ मियां अब्दुल रहमान बोदला, मेंबर पंजाब बार काउंसिल जाम मोहम्मद यूनुस और सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अरशद हुसैन भट्टी एडवोकेट ने भी खिताब किया। कैमरामैन उस्मान नवाज के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। कोरोना की वजह से बंद तालीमी इदारों को मरहलावार खोलने की तजवीज। 25 जनवरी से प्राइमरी स्कूल्स खोलने की सिफारिश। 4 फरवरी से मिडिल ता इंटरमीडिएट क्लासेस को शुरू किया जाएगा। 15 फरवरी से यूनिवर्सिटीज खोलने पर गौर किया जा रहा है। बोर्ड्स इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते और जून के इब्तिदा में लेने की तजवीज पेश की गई है। हतमी फैसला 4 जनवरी को बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में होगा। बात करेंगे पीडीएम रैली की। मुल्तान के बाद पीडीएम क़यादत भावलपुर में पावर शो के लिए तैयार। कल नवाबों के शहर में रैली निकाली जाएगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज समेत पीडीएम क़यादत में शिरकत करेगी। रैली के हवाले से तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के बाद पीडीएम क़यादत बहावलपुर में पावर शो के लिए तैयार है। कल नवाबों के शहर में रैली निकाली जाएगी। रैली में पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज समेत पीडीएम की क़यादत शिरकत करेगी। मौलाना फजलुर रहमान काफिले की सूरत में मुल्तान से बहावलपुर पहुंचेंगे। मरियम नवाज की आमद पर ऊंट कुर्बान करने का फैसला। लीगी एमपीए मलिक जहीर इकबाल की रहायशगाह पर कुर्बानी का ऊंट। मुस्लिम लीग नून का मरकजी काफिला बहावलपुर बाईपास से रवाना होगा। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद पार्टी सेक्रेटेरिएट से काफिला लेकर निकलेंगे। मुल्तान से भी अपोजिशन रहनुमा रैलियों की क़यादत करते हुए बहावलपुर पहुंचेंगे। कारकुनान ने बहावलपुर के रैली को तारीखी बनाने के अज़्म का इजहार किया है। कोरोना फजा में पीडीएम को रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिला इंतजामिया के रैली की इजाजत न देने का फैसला। मकामी लीडर्स को जलसे के इनेकाद न करने के नोटिस जारी कर दिए गए। रैली से पहले ही पीडीएम के मकामी कायदीन की गिरफ्तारियां। थाना बगदाद पुलिस ने लीगी कारकुन वसीम कुरैशी को धर लिया। नवाबों के शहर में सियासी पारा हाई हो गया। बहावलपुर सियासत का मरकज बन गया। पीडीएम कल बहावलपुर में रैली निकालेगी। बहावलपुर में जिला इंतजामिया का रैली की इजाजत न देने का फैसला। कोरोना फजा में पीडीएम को रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। मकामी लीडर को जलसे का इनेकाद न करने का नोटिस जारी कर दिया गया। अमल न करने पर कानूनी कार्रवाई का इंतहा। रैली को रोकने के लिए कंटेनर की पकड़ धकड़। दर्जनों कंटेनर को ड्रंक स्टेडियम के तरफ पहुंचा दिया गया। शहर में लगी पीडीएम रैली के पैनाफ्लेक्सेस भी उतार दिए गए। रैली से पहले ही पीडीएम के मकामी कायदीन की गिरफ्तारियां। थाना बगदाद पुलिस ने लीगी कारकुन वसीम कुरैशी को धर लिया। वसीम कुरैशी ने पीडीएम के पैनाफ्लेक्स उतारने की वीडियो वायरल की थी। साबिक मेयर अकील नजम हाशमी, तनवीर अशरफ रामे, मौलाना अब्दुल्ला, गुलाम यासीन सिद्दीकी, असलम रहमानी के खिलाफ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बहावलपुर में पीडीएम के मकामी कायदीन ने हुकूमती पाबंदी के बावजूद कल हर सूरत रैली निकालने का फैसला कर लिया। रैली में कारकुनान को भरपूर शिरकत की हिदायत कर दी गई है। तैयब सैफ की रिपोर्ट। बहावलपुर में इंतजामिया की जानिब से पीडीएम की रैली निकालने की इजाजत न मिलने पर ब्लीग हाउस में तमाम पीडीएम कायदीन इकट्ठे हुए और अहम फैसले किए गए हैं, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मियां ब्लीगुर रहमान ने कहा है कि रहीम यार खान से लेकर बहावल नगर तक तमाम वर्कर्स के घरों पर छापे मारे गए, जो काबिले मजम्मत हैं। फौरी तौर पर शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। रहीम यार खान से लेकर बहावल नगर तक एक बड़ी तादाद में वर्कर्स के घरों में छापे मारे गए। कुछ जगहों पे गिरफ्तारियां, क्योंकि हम पहले से ही चौकन्ना थे वर्कर्स कि ये हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, तो इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे गिरफ्तारियां हुई हैं। रहीम यार खान, बहावलपुर, जमीयत और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनों की गिरफ्तारियां जारी हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। पीडीएम की तमाम क़यादत बहावलपुर आएगी। ये तहरीक गरीब की रोटी के लिए है। हमारा एहतियाज है, हम कहते हैं कि वोट को इज्जत दो और पाकिस्तान में जो है वो उसको आईन और कानून के मुताबिक चलाओ। और वो जो चोरी आपने 2018 के इलेक्शन में की है, उसको उस वक्त मान लिया गया था। अब 2.5 साल हो गए हैं, आप कुली तौर पे फेल हो गए हैं, फिर आप बजाते खुद इस बात को मानते हैं, तो अब कौन सी वो ऐसी बात है कि आपको रहने दिया जाए। डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि गिरफ्तारियों के डर से कारकुन घरों में नहीं बैठेंगे। रैली हर सूरत होगी। मरकजी क़यादत के पीछे कारकुनान आएंगे। कैमरामैन सुकलैन शाह के साथ तैयब सैफ, रोही, बहावलपुर। बात करेंगे कोविड-19 की। कोरोना जनूबी पंजाब पर असरअंदाज होने लगा। सरगोदा में कोरोना वायरस मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। 48 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई है। डीजी खान में 16, मुल्तान में 12 अफराद वायरस का शिकार हो गए। बहावलपुर मियांवाली में 13 मरीजों का टेस्ट मुस्बत आ गया।
कोरोना जनूबी पंजाब पर असर अंदाज होने लगा। सरगोदा में कोरोना वायरस मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। 48 मरीजों में कोरोना की तस्दीक। डीजी खान में 16 और मुल्तान में 12 अफराद वायरस का शिकार। बहावलपुर मियांवाली में 13 मरीजों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। रहीम यार खान में आलमी वबा की दूसरी लहर में शिद्दत। 25 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। MSTHQ डॉक्टर खान वजीर में कोरोना की तस्दीक। डिस्ट्रिक्ट जेल के एक एहलकार और 4 कैदी भी वायरस का शिकार। सादिकाबाद असलम टाउन में एक ही खानदान के 6 अफराद और FFC में एक ही खानदान के 4 अफराद वायरस में मुब्तला हो गए। शहर औलिया के बच्चों की बेहतर सेहत के लिए एहसन इक़दाम। मुल्तान मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की तामीर का PC1 तैयार। महकमा सेहत मुल्तान ने PC1 महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को भिजवा दिया। 200 बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का क़याम गल्ला मंडी के करीब तामीर होगा। महकमा सेहत मुल्तान की जानिब से PC1 महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को भिजवा दिया गया है। अस्पताल 200 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। CO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का कहना है कि नए अस्पताल के क़याम से मरीजों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। मुल्तान में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में DC ऑफिस में तरक्याती मंसूबों का इजलास हुआ। पार्लियामेंटेरियन अरकान असम्बली से तरक्याती कामों की तजावीज़ तलब की गई। अमजद मलिक की रिपोर्ट। आजम का मुतवक्के दौरा मुल्तान के हवाले से मुल्तान तरक्याती पैकेज की तैयारियां शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक, वजीर मुमलिकत मलिक आमिर डोगर, सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक समेत अरकान सूबाई असम्बली और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे और बन जाए, क्योंकि ये बड़ी आबादी वाला शहर है और रिक्वायरमेंट भी है। इस तरह हमारी IT यूनिवर्सिटी का एक हमने सिचुएशन यहाँ पे दी है। तीसरा, हमारे जो सीवरेज के मसाइल हैं मुल्तान के, जो पूरा आधे से ज्यादा मुल्तान डूबा रहता है, वो मेगा प्रोजेक्ट सीवरेज का हम वो भी चाह रहे हैं कि एक सीवरेज यहाँ पर हो जाए। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टा का कहना था कि शहर में सीवरेज और सड़कों की तामीर समेत कई मंसूबे शामिल किए जाएंगे, जिनमें हेड मोहम्मद वाला रोड की कशादगी का मंसूबा शामिल है। तमाम अरकान असम्बली से 5 बड़ी स्कीमें तलब की गई हैं। मुल्तान पैकेज के हवाले से भी हमने डिस्कशन की और जो हमने मंडियाँ शिफ्ट करनी है बाहर, चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शन पे उस पर भी बातचीत हुई और बाकी जनरल जो हमारी डेवलपमेंट का प्रोफाइल है वो सारा डिस्कस हुआ है। इजलास में वजीर मुमलिकत मलिक आमिर डोगर, रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, MPA वासिफ रां, MPA सबीन गुल समेत दीगर अरकान असम्बली ने हल्के के मसाइल और तरक्याती स्कीमों की तजावीज से आगाह किया। कैमरामैन करार हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। DC आमिर खट्टक कहते हैं मुल्तान में किसी रवायती भट्टे को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिगजैग के मुतबादिल टेक्नोलॉजी को कबूल करने बारे कोई फैसला नहीं किया गया। हुकूमत की जानिब से सिर्फ जिगजैग टेक्नोलॉजी के हामिल भट्टों को चलाने की इजाजत दी गई। DC मुल्तान आमिर खट्टक से भट्टा एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें ADC रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान, ACs आबिदा फरीद और मोहम्मद जुबैर मौजूद थे। DC आमिर खट्टक का कहना था कि मोबाइल लैब ने मुतबादिल टेक्नोलॉजी के हामिल एक भट्टे के सैंपल हासिल कर लिए। मुतबादिल टेक्नोलॉजी की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट का इंतजार है। हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बगैर किसी मुतबादिल टेक्नोलॉजी को कबूल नहीं किया जाएगा। सरगोदा में हुकूमत की सेहत की सहूलियात फराहमी के दावे। डिवीजन के सबसे बड़े DHQ टीचिंग अस्पतालों की CT स्कैन मशीन 3 रोज से खराब है। शहरी खार होने लगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से सेहत की सहूलियात के बुलंदो बांग दावे खोखले निकले। सरगोदा डिवीजन के सबसे बड़े DHQ टीचिंग अस्पताल की CT स्कैन मशीन खराब हो गई। वाहिद CT स्कैन मशीन गुज़श्ता 3 रोज से खराब होने के बायस शहरी खबार होने लगे। मीलों सफर करके इमरजेंसी की सूरत में आने वाले शहरियों को प्राइवेट अस्पताल रेफर किया जाने लगा। गरीब शहरी कहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में CT स्कैन के 10 से 15 हजार नहीं दे सकते। कम तो बच्चे बजना, चलो ऑपरेशन हो वंदा था गुआ पड़स कम भी रहे, पर गरीब बंदे हैं बाहर तक सिवाय की दाई ना सकते। मेरे वालिद साहब को डॉक्टरों ने स्किन के बारे में बताया, हम इधर स्किन करवाने आए हैं तो ये कह रहे हैं जी हमारे पास तो मशीन खराब है। MSDHQ गुलाम शबीर ने मौकफ देने से इनकार कर दिया। रेडियोलॉजिस्ट के मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट और समाही सर्विस के बायस CT स्कैन मशीन बंद है। 2 से 3 रोज में फाल कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से सेहत की सहूलियात की फराहमी के बुलंदो बांग दावे तो किए जाते हैं, लेकिन डिवीजन के सबसे बड़े DHQ टीचिंग अस्पताल में वाहिद CT स्कैन मशीन गुज़श्ता 3 रोज से खराब पड़ी है, जबकि शहरी मीलों सफर करके यहां पर आकर ख्वार हो रहे हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। जहानिया में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ख़ुरनोश की फराहमी मुकम्मल तौर पर यकीनी नहीं बनाई जा सकी।
पुल 14 पर कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़श्ता 15 रोज से आटा भी दस्तयाब नहीं। शहरियों ने अशिया की फराहमी न होने पर शिकवा किया। जहानिया में यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरोनोश की किल्लत है। पुल 14 पर कायम यूटिलिटी स्टोर पर गुज़िश्ता 15 रोज से आटा दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से गरीब तबका परेशान है। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर सहूलियात फ्राहम नहीं की जा रही और न ही अशिया की मुकम्मल वैरायटी दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि घी या चीनी की खरीदारी पर साबुन, सर्फ या दीगर अशिया की खरीदारी भी शर्त है, वरना घी चीनी नहीं दिया जाता। घ्यो ते चीनी दे दिओ जनाब, उन्हें मैनू नहीं दी। मेरे हुंदियां ही दूसरा बंदा आया, ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਖਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ। शहरी का कहना था कि अगर किसी के पास दूसरी अशिया की खरीदारी के लिए रकम मौजूद ना हो तो वो क्या करे। एक आदमी के पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है, उसके पास सिर्फ गुंजाइश ये है कि मैंने चीनी और घी लेना है और दूसरी चीज की उसको जरूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है, तो ये उसके ऊपर शर्त लगाकर उस गरीब आदमी को नहीं देता। हम जाएं या दूसरा जाए, कोई भी जाए, किसी को ये चीज जो है ना जरूरत के मुताबिक नहीं देता। इस मामले पर स्टोर इंचार्ज शहबाज ने बताया कि जो सामान स्टोर पर मौजूद है वो ग्राहकों को दिया जा रहा है। हम जो सामान हमारे पास पड़ा है वो सब अवेलेबल है, आपके सामने पड़ा है, जो स्टॉक भी पड़ा है सब इंशाल्लाह आवाम को मिल रहा है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर हुकाम से अशिया की किल्लत और फ्राहमी न होने पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। माजिद असलम, रोही, जहानिया। शहर मुल्तान की अहम शाहराएं हजूरी बाग रोड अरसद रात से टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया, हादसात में भी इजाफा हुआ है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। मुल्तान में अरसद रात से टूटी हुई हजूरी बाग रोड इलाका मकीनों और शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। हजूरी बाग रोड मुल्तान शहर की अहम शाहराह जानी जाती है, जो घंटा घर से 9 नंबर की जानिब जाती है। टूटी हुई सड़क ट्रैफिक को मुतासिर करने लगी और हादसात की वजह भी बनने लगी। सड़कें कितने दिन से ये टूटी हुई हैं, ये हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है कि भाई ये बनानी है, इनको क्या करना है। ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पे आवाम जलील हो रही है, ख्वार हो रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार सड़क बनवाने के लिए दरख्वास्तें जमा कराई गईं, लेकिन ताहाल कोई भी अमल ना हो सका और टूटी हुई सड़क के बाइस ताजिरों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। मुतअद्दिद बार हमने कहा है, लेकिन हुकाम वालों ने इस पर नोटिस नहीं लिया। और वैसे भी गालिबन मैं कोई मुखालफाना बात नहीं कर रहा, रिकॉर्ड के पेश नजर ये जो सड़क जो खड्डा बना हुआ है, ये पिछली हुकूमत का तोहफा बना हुआ है। शहरियों ने कहा कि सड़क टूट फूट का शिकार होने के बाइस हर वक्त ट्रैफिक जैम रहती है, जिसके बाइस सड़क से गुजरने वाला हर शख्स मुतासिर होता है। टूटी हुई सड़कें शहरियों के लिए बाइस रहमत नहीं बल्कि बाइस जहमत हैं। हुकूमत वक्त को अब तो इनकी जानिब तवज्जो देनी होगी। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। रहीमिया खान के कब्रिस्तानों और जनाजगाहों को साफ सुथरा करने का काम शुरू हो गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने कब्रिस्तानों से निकासियाब और घास जड़ी बूटियों की सफाई का काम भी शुरू कर दिया है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। रहीमिया खान के कब्रिस्तानों और जनाजा गाहों को साफ सुथरा बनाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ग्रैंड ऑपरेशन किया। चक 111 भी गरीबी में मौजूद कब्रिस्तान में सफाई की गई। मुकामी हाउसिंग सोसाइटी के ताउन से हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करके कब्रिस्तान के रास्ते को साफ किया गया। झाड़ियों और जड़ी बूटियों का खात्मा किया गया और नकासी आप का काम भी किया गया। सफाई के काम की निगरानी तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक वड़ाइच और म्युनिसिपल ऑफिसर अजमत कदीर कुराया ने की। हमारे रॉयल बशीर गार्डन से गुलजार डिलू साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि अपना ट्रैक्टर भेजें और ये सारी आगे जो रोड है उसको हमने पार्किंग के लिए ठीक कर रहे हैं और अंदर से सफाई भी करवाई है और पौधे वगैरह भी ठीक कर रहे हैं सारे। आज हमने शहर के मुख्तलिफ जो कब्रिस्तान है उनका विजिट किया है और जिस कब्रिस्तान के अंदर जनाजा गाह मौजूद है उनकी सफाई और डेंगू के हवाले से अगर कब्रिस्तान के अंदर लोग पानी वगैरह रख जाते हैं तो वो खड़ा हो तो उसको खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। रहीमिया खान में कब्रिस्तानों को साफ सुथरा बनाने के साथ साथ पार्किंग के लिए भी जगह को हमवार किया जा रहा है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान। वज़ीर-ए-आज़म के बयान के मुताबिक लिया में फैसल असगर ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम लंगर खाने का आगाज। मुआवने ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब रफ़ाकत गिलानी, MNA मलिक नियाज़ जखर, DC अजफर ज़िया, DPO सैयद नदीम अब्बास और अली अफसर गिरमानी ने लंगर खाने का इफ्तिताह किया। ये रिपोर्ट देखिए। फैसल असगर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम लंगर खाना शुरू कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के तहत खोले गए लंगर खाने का इफ्तिताह मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब रफ़ाकत अली गिलानी ने किया है। फैसल असगर ट्रस्ट के बानी अली असगर गुरमानी ने कहा कि लंगर खाने में 500 से ज्यादा शहरी खाना खा सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी,
ये सबसे पहले तो जी अल्लाह ताला का जो हुक्म है कुरान पाक में, जो मसाकिनों का, गरीबों का, असल तो उस चीज़ पे अमल पर आए हैं। और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं ये पाकिस्तान के, उनका भी यही विज़न है। ये जो उनका एक कहना है ना कि रियासत मदीना, तो जो तनकीद करने वाले कहते हैं ना तो कैसे बनेगी, तो ये रियासत मदीना सिर्फ एक शख्स ने नहीं बनानी होती, ये हम सब लोगों ने मिलकर ये उसी रियासत मदीना की तरफ एक कदम है साहब का, अपनी छोटी सी रियासत। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत गिलानी ने कहा कि मुखय्यर हजरात को लंगर खाने खोलने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अली असगर गुरमानी साहब का, जिनकी ये खसूसी काविश है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, डीसी लिया का शुक्रगुजार हूँ। हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी आज मौजूद हैं। तो इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जिस तरह मेरे भाई ने कहा, ये रियासत मदीना की तरफ हमारा एक कदम है। इसी तरह से इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को देखते हुए और दूसरे दोस्त भी मोटिवेट होंगे और इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने कहा कि मदीने की रियासत के नजरिए को अमली जामा पहनाया जा रहा है। जी, मैं तो शुक्रगुजार हूँ अली असगर गुरमानी साहब का कि इन्होंने हमारी जो हम्बल सी तजवीज़ थी उसको ऑन किया, और वो कहते हैं कि सुनने वाले तो बेशुमार होते हैं, करने वाला कोई कोई होता है। तो हमने इनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने इसको ऑन किया, और ये लंगर खाना इन्होंने अपनी ज़ाती ज़मीन पर अपने ज़ाती खर्चे से बनाया। इस पर 500 से 600 लोग इस पर यहाँ खाना खा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ज़िला लिया में रियासत मदीना की तरफ बनाने के हवाले से ये एक बड़ा मेजर और अहम कदम है। MPA शहाबुद्दीन ने लिया में लंगर खाने के कयाम को सराहा। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया, DPO नदीम अब्बास और मेंबरान असम्बली ने मुस्तहिक अफराद में खाना तकसीम किया। हुकूमत पंजाब ने सूरजमुखी की काश्त पर रवां सीजन के लिए 5,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी देने का फैसला कर लिया था। लशारी की रिपोर्ट। तर्जमान महकमा ज़राअत अब्दुल समद का कहना है कि सूरजमुखी की फी एकड़ बीज की खरीदारी पर 5,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। पंजाब भर में रवां साल 2,10,000 एकड़ पर सूरजमुखी का काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि सिर्फ मुल्तान डिवीजन में 39,000 एकड़ पर सूरजमुखी की काश्त का हदफ है। सूरजमुखी की काश्त पर 5,000 रुपये फी एकड़ सब्सिडी दी जा रही है। काश्तकार जो है वो सब्सिडी से फ़ायदा हासिल करके ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर सूरजमुखी काश्त करें। इससे न सिर्फ उनकी आमदन में इजाफा होगा बल्कि जो दरामदी बिल है उसमें भी कमी वाकई हासिल होगी। गुज़िश्ता 3 सालों में पंजाब भर में सूरजमुखी की काश्त का हदफ पूरा नहीं हुआ। महकमा ज़राअत का कहना है कि जनूबी पंजाब में सूरजमुखी काश्त का वक्त शुरू हो चुका है। अगर काश्त बर वक्त कर ली जाए तो न सिर्फ इसकी पैदावार बेहतर होती है बल्कि बीज से तेल की मिकदार भी पूरी हासिल की जा सकती है। सूरजमुखी पाकिस्तान की एक अहम तरीन तेलदार फसल है। इसके बीज में अला क्वालिटी का खोटनी तेल पाया जाता है। सूरजमुखी से बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए इसके मौजूद तरीन वक्त पे काश्त करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ताखीर से काश्त करेंगे इसकी न सिर्फ फी एकड़ पैदावार में कमी होगी बल्कि इसका जो तेल है उसमें भी कमी वाकई होती है। तर्जमान के मुताबिक सूरजमुखी के बीज के हर थैले में 5,000 रुपए के सब्सिडी वाउचर मौजूद हैं। कैमरामैन ईडी नवाज के साथ अतर लशारी, मुल्तान। महकमा ज़राअत तौसीक के माहिरीन की काश्तकारों को गंदम की फसल को पहले पानी के बाद अच्छी मैनेजमेंट से बेहतर करने की हिदायत। गंदम के लिए गैर जरूरी तौर पर यूरिया का इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया। अहम तरीन ज़राई फसल गंदम की बेहतर मैनेजमेंट करके इससे ज्यादा मिकदार हासिल की जा सकती है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी मुल्तान शेख यूसुफ रहमान का कहना था कि पहली अबपाशी के बाद गंदम की फसल में चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों का हमला ज्यादा हो गया है। काश्तकारों को चाहिए कि जड़ी बूटियों का बर वक्त तदारुक करें ताकि पैदावार मुतासिर न हो। हमने अगर भरपूर पैदावार लेनी है तो जड़ी बूटी का कंट्रोल भी आएगा और मुतनासिब खादों का इस्तेमाल भी आएगा पानी के साथ ना। रकबे की जरखेजी और उसके टेक्सचर को मद्देनजर रखते हुए खादों का इस्तेमाल जो है ना वो ज़राई कारकुनों के मशवरे से करें। महकमा ज़राअत के मुताबिक गंदम की फसल से जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए हुकूमत मखसूस ज़राई अद्वियात पर 250 रुपए फी एकड़ पर सब्सिडी फराम कर रही है। माहिरीन ने काश्तकारों को हदायत की है कि खादों का इस्तेमाल महकमा ज़राअत के अमले की मशावरत से करें। यूरिया के गैर जरूरी इस्तेमाल से गुरेज करें। पानी लगाने के बाद बतर हालत में चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों का कंट्रोल जो है ना वो लाजिम करें और जड़ी बूटियों की जो भी वीडिसाइड्स अवेलेबल है मार्केट में सिलेक्टिव के ऊपर जो है ना 250 रुपए सब्सिडी भी है गवर्नमेंट की तरफ से ना। काश्तकार गंदम की फसल से ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत की तजावीज़ पर अमल करते हुए इसकी मैनेजमेंट बेहतर बनाएं। कैमरामैन ईडी नवाज के साथ अतर लशारी, मुल्तान। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट बार में पोलिंग 9 जनवरी को होगी। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के 9 जनवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए 16 नशिस्तों पर 39 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सदारत की नशिस्त पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। नायब सदर की नशिस्त पर 2 उम्मीदवार और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 5 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार, फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर 4 और लाइब्रेरी सेक्रेटरी की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मजलिस आमला की 10 नशिस्तों पर 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इलेक्शन इंशाल्लाह 9 जनवरी को होंगे बरोज हफ्ता, और कैंडिडेट्स के लिए हमने ये हिदायत नोटिफिकेशन जारी किए हुए हैं। उन पर सारे उनके जो है ना सदर के लिए 10 साल के लिए है, 10 साल की स्टैंडिंग हो, और नायब सदर के लिए गालबन 8 साल है, और हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 5 साल सेक्रेटरी की है। सैयद मोहम्मद यूसुफ अकबर नकवी, मुख्तार अहमद खान नियाजी, राना मिराज खालिद और मोहम्मद वसीम खान बाबर सदारत की नशिस्त के लिए आमने सामने हैं। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवारों में अमीर अहमद अवान, मोहम्मद वसीम खान, उसामा बहादुर खान, राना गुलाम हुसैन और चौधरी मोहम्मद अरशद साबिर मेओ शामिल हैं। सिर्फ एक बहुत इदारा ऐसा है वकला का जहां पर इलेक्शन टाइम पे होते हैं, कभी कोई ना ऐसे कोई मुलतवी कर सकता है, ना कोई आके कह सकता है कि नहीं अब इलेक्शन नहीं होगा। कतई नहीं, ऐसा नहीं, ये बार बार इलेक्शन होते हैं। नायब सदर के उम्मीदवारों में सैयद इश्तियाक शाह और मियां बशीर अहमद, फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए जिशान नजर भट्टी, मलिक इरफान अयूब भुट्टा, सैयद इरफान अब्बास नकवी और चौधरी जिशान मसूद मुकाबले की दौड़ में शामिल हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ माहर इमरान नवाज, रोई, मुल्तान। लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के द्वारा तमाम होने वाली फर्स्ट कायद आजम इंटर डिवीजन चैंपियनशिप मुल्तान डिवीजन के मेल कैटेगरी के एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, साइकिलिंग और टेनिस की टीमों के चुनाव के लिए ट्रायल्स मुकम्मल कर लिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मकसूद। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम का कहना है कि मर्दों की टीमों के चुनाव के लिए एथलेटिक्स, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पिट, आर्चरी और बैडमिंटन के ट्रायल्स मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि खवातीन के लिए एथलेटिक्स, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पिट, आर्चरी और साइकिलिंग, टेनिस के ट्रायल्स मरियम हॉल विमेन स्पोर्ट्स ग्राउंड बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में कल होंगे। कायद आज़म इंटर डिवीजन चैंपियनशिप्स हैं, इसमें 5 गेम्स रखी हैं इन्होंने, जिसमें एथलेटिक्स है, आर्चरी है, बैडमिंटन है और साइकिलिंग है, टेनिस है। तो इसके लिए हमने चूंकि टीमों को फॉर्मुलेट करना है, तो आज हमने 2 दिनों में ट्रायल रखे हुए हैं। तो आज हमारे ट्रायल चल रहे हैं और इसमें हमने बिल्कुल जो हमारी न्यूट्रल जो सिलेक्शन कमेटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की हुई हैं। इंटरनेशनल ओलंपियन अब्दुल रशीद का कहना था कि कोविड के 22 तमाम एथलेटिक्स घरों में बैठे रहे। ट्रायल्स के लिए भी बहुत शॉर्ट टाइम दिया गया है। कोविड-19 की वजह से सारे एथलीट्स घरों में बैठे हुए हैं, कोई मकसद फुल पीक पे कोई प्लेयर भी नहीं है। ये एक शॉर्ट टाइम के लिए हमें ये आगाही दी गई कि ये ट्रायल्स हैं, तो चूंकि आज हम ट्रायल्स ले रहे हैं, लड़के अच्छे हैं माशाल्लाह, फ्यूचर के लिए भी अच्छे हैं। बहरहाल हमारी कोशिश है कि जो लड़के हम सिलेक्ट करेंगे वो मुल्तान डिवीजन का नाम रोशन करेंगे। मुल्तान से 64 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल मुल्तान डिवीजन का दस्ता 5 जनवरी को फर्स्ट कायद आजम इंटर डिवीजन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए लाहौर रवाना होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद मकसूद, रोही, मुल्तान। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।